Good morning, everyone. So let's begin with the explanation part of page 14. So, in page 14, we have to cover the topic increasing crop production. For that case, have a reading of it right now. To feed the ever increasing population in our country, we need to constantly increase the food grain production. As we have already discussed about the fact that to meet the requirement, we have to increase the food production. Okay? Food बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं हम? Crop production. Production means to produce. Okay, so we need to increase the production of the crop just to meet the daily basis requirement. While this was happened in the past few decades, we cannot indefinitely go on increasing farmlands, as this led to the environment problems such as soil erosion. So what is happening? By clearing up the crops, by just harvesting the crop again and again, what is happening? That removal of the topsoil is been happening. Okay, so that causes to the soil erosion. अगर लगातार continuously we are harvesting the crop, what will happen? Then the increase of the crop erosions will ultimately increase. So also, if forests are cut down to get more land for farming, it leads to even greater environment problems, which continuously gives rise to the environmental problems. Improvement in the methods of agriculture, which we have discussed till now, is the most suitable alternative to increase crop produce. Providing better irrigation facilities, proper use of manures and fertilizers, use of natural methods of replenishing nutrients in the soil. So we have discussed about the steps to increase or how the crop is being produced in our previous lecture. So उन्हीं के फैक्टर्स को वी विल इम्प्रोवाइज एंड हम उसी को स्टडी करके देखेंगे कि इनके इम्प्रोवाइज करने के लिए क्रॉप को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस अच्छे से करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अच्छे से वीड्स रिमूव करना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए, लाइक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो दीज आर द नॉर्मल थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन कि जिससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन विल इंक्रीज. ऑफ कोर्स अगर इनके स्टेप्स जो हम स्टडी कर रहे हैं हमने लास्ट लेक्चर में, वी विल जस्ट हैव अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन अबाउट दैट कि ईच स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप. सो अगर ये सारे स्टेप्स पे हम अच्छे से मॉनिटर करें, अच्छे से वर्क अपॉन करें, तो डेफिनेटली क्रॉप के प्रोडक्शन विल गेट इंक्रीज. तो अच्छे हमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करें, मॉडर्न वेज से इसको इम्प्रोवाइज करें, देन प्रोवाइडिंग अ बेटर स्टोरेज मेथड कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन. अगर हम स्टोर अच्छे से करेंगे तो वेस्टेज जो है उसकी वो भी ओवरकम हो जाएगी. रिसेंटली हाउएवर सस्टेनेबल increase in crop produce has come about from using better varieties of crop which have higher yields and more resistance to the disease. अब हम इतना ज़्यादा मॉडर्न सीड्स को यूज़ कर रहे हैं जिसमें डिसीज़ नहीं होती हैं जल्दी से, एंड they are resistant to different types of diseases. So this type of modernization we are doing to improve or better the improvement of the crop. In future also, development of a still variety is expected to the main method of increasing crop output. This is done by the process called plant breeding. Breeding producing offsprings. So what is the term breeding? ब्रीडिंग बोली जाती है जैसे एज यू ऑल नो दैट कि अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीड्स होते हैं उनका क्रॉस करना, या ऑफस्प्रिंग्स बोलो या यंग्स वंस बोलो, न्यू यंग वंस. तो नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे सीड्स को हम क्या करते हैं, उनके साथ रिप्रोड्यूस करा देते हैं. ओके, to get better quality of seeds. Fine. So better quality of seeds
फाइंड जस्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें ब्रीडिंग क्या होता है, देयर इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मीन्स होता है किसी की कुछ सीड्स में क्वालिटीज़ होती हैं एंड समवन एल्स हैव द बेटर और द डिफरेंट क्वालिटीज़। सो इन दोनों के क्रॉस से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो पुराने वाले से ज़्यादा बेटर होते हैं। ओके, breeding means producing offsprings. Scientists have controlled the reproduction in plants and animals so that they can acquire the characteristics which make them more useful. Okay, so it is with the case of the plants, or we can also know and aware of the breeding in the case of the animals also. Right now we will understand the term about what is hybridization. तो hybridization क्या होता है? Just have a reading of this part so that we can come to the next part, that is hybridization. Now what is hybridization? Hybridization is a process जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है so that we can produce a new and good quality of seeds. Hybridization is a technique for developing the new variety of crops by cross breeding. What is cross breeding? क्रॉस मीन्स जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, किसी की क्वालिटीज़, ठीक है। यू कैन राइट डाउन एस, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन जेड ओवर। सपोज दिस इज अ सीड जिसमें डिसीज नहीं होते, ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस है। दिस इज अ सीड जो ज़्यादा जो विच इज डेवलप इन लेस वाटर रिक्वायरमेंट। अब इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है सीड को, और इसमें डिसीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाते हैं, जो हमें न्यू सीड ऑब्टेन होगा उसमें दोनों क्वालिटीज़ होंगी, ना तो वो डिसीज़ उसमें जल्दी लगेगी और उसमें कम पानी में भी सीड विल ऑब्टेन। सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें एक कैरेक्टर सीड का लेके दूसरा कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है, कंबाइन किया जाता है, ताकि जो डेवलप हो सीड वो और भी बेटर हो, उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हो जो नॉर्मल वाली सीड्स में नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू वेराइटी कैन बी मेड। अब इससे क्या वेराइटी मिलेगी, जो जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा, वाटर कंटेंट मीन्स होगा बट लेसर होगा, एंड वो डिसीज रेजिस्टेंस भी होगी। सो दीज टू क्वालिटीज़ आर देयर इन द न्यू डेवलप सीड्स। सो सच मेथड जिसमें हम दो क्वालिटीज़ को मिला करके नया कुछ बनाते हैं हमारे अपने फ़ायदे के लिए, फॉर आर एडवांटेज टू जस्ट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, सच टाइप ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। Okay, a new variety can be made to have the desired characteristics from both the parents. दोनों के कैरेक्टर्स से न्यू वाला जो डेवलप होगा उसमें दोनों के क्वालिटीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल हाई yield and resistance to disease. They select two varieties as I told you. One have the high yield and other have the resistance to disease. तो क्रॉस ब्रीडिंग between the two varieties is done in order to develop one variety which has both the desired characteristics. तो इसके अंदर क्या होंगे, ये दोनों ही चीज़ें होंगी। फाइन। So the new type of seed have both the qualities of each of its parents. Okay. To prevent the self-fertilization, anther of one variety are removed by the process of assimilation. तो इसमें अपने साथ ही ये फर्टिलाइज ना हो तो इसका एंथर, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो पॉलन ग्रेन्स उसके रिमूव कर दिए जाते। देन द कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स आर transfer to the stigma or accumulated flower of the first variety. This process is repeated over several generations to get the desired characters in seed. This seed is called a stalk of the new variety. ये तब तक कराया जाता है जब तक हमको न्यू सीड्स ना मिल जाए, न्यू सीड विद गुड वेराइटी। और इट इज़ बी गुड हो या फिर न्यू ट्रेड्स के साथ।
इसमें वो क्वालिटीज़ होती है जो पुराने वाले के अंदर नहीं होती है. ओके, नाउ ऑन दिस कम टू पेज नंबर 15. नाउ प्रोड्यूसिंग प्लांट हाइब्रिड्स कैन बी अ लॉन्ग एंड ट्रेंडस प्रोसेस. तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है क्योंकि हमें वेट करना होता है जब तक नई जनरेशन में वो क्वालिटीज़ ना हो. फाइन. तो द ग्रीन रिवोल्यूशन of 1960s and 1970s in India was brought about the importing high yield variety of wheat from Mexico. Besides giving high yield, the plants were smaller and stronger, had better response to the fertilizers. However, these varieties require more water and fertilizers and also require frequent weeding. The effect of the green revolution on production of the food grains is clearly seen in table 1.4. That is, by using the new varieties we can see the change which has been born. तो इसमें क्या था कि हमने हाई वैरायटी की जो भी सीड्स यूज़ करें उससे हमारा जो प्रोडक्शन है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है. इसमें मैन्योरिंग करी जाती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि it is more productive than the older one. Now the last part of this chapter is nitrogen cycle. So come to the most important part of this chapter, that is nitrogen cycle. So what is nitrogen? We have already have a discussion कि नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्लांट्स उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म. ये ऐसी कंपाउंड फॉर्म होती है जिसको प्लांट्स डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते. ओके, तो अब हम कैसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोटीन्स इन केस ऑफ प्लांट्स. सो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ यूज इन द डिफरेंट life forms to carry out many of the functions. For example, it is needed for the formation of protein, amino acid, nucleic acids, especially important to the plant life. तो प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे. अगर ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एयर कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन, yet nitrogen in its gaseous form is almost entirely unusable to life forms. It must first be converted or fixed into more usable form, mainly soluble nitrates. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर में हमारा 78% का नाइट्रोजन है, बट हम उसे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते प्लांट्स. वाई? बिकॉज इसको यूज़ करने के लिए इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स. फाइन. इन फॉर्म विच इज़ यूज बाय द प्लांट्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सबसे पहला स्टेप इज दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, व्हाट इज फिक्सेशन? फिक्सेशन मीन्स होता है फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन. फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन सो दैट ये सॉल्युबल फॉर्म हो जाए इसकी, ताकि हमारे प्लांट्स उसको क्या कर सके, यूज. डायरेक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते. सबसे पहले ये उस फॉर्म में लेके आएंगे जिसमें ये प्रॉपरली यूजेबल हो. ओके, सो in nature the nitrogen fixation is done by the special bacteria जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं. लेगिमिनस प्लांट्स में ऑब्टेन होते हैं. वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके नोड्यूल्स पे, प्लांट्स के नोड्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली दाल वगैरह के. ओके, तो द बैक्टीरिया दे आर रिटर्न द नाइट्रोजन इनटू द गैसियस फॉर्म. तो सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. इट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूज बाय द प्लांट्स एंड उसके बाद एनिमल्स उसको खाते हैं. इस तरीके से जब वो एनिमल्स डेड हो जाते हैं या प्लांट्स डेड हो जाते हैं, वापस वो नाइट्रोजन कहाँ जा जाती है, एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द एंटायर साइकिल. द cyclic process of nitrogen being fixed and used by the plants and later returned to the atmosphere is known as nitrogen cycle. So this is the cycle. अब हमको किस फॉर्म में मिलती है? या तो बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट करे, या तो लाइटनिंग से वो टूट जाता है कंपाउंड, या तो फर्टिलाइजर से ये नाइट्रोजन सॉइल में जाती है. सॉइल में जाने के बाद प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, या प्लांट्स डेड हो गए, एनिमल्स डेड हो गए, वापस से ये कहा जाता है सॉइल में. सॉइल में फिर बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ओके, so now we will study about the steps of the nitrogen cycle, that is important. सबसे पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन.
सबसे पहले प्रोसेस वी विल स्टडी इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू nitrogen assimilation, ammonification, nitrification and denitrification. So these are the steps which is given in detail in your page 16. We will study in this part only. So the process of converting free nitrogen gas of the atmosphere into nitrogen compound is called nitrogen fixation. This part I have already explained. अब at nitrogen fixation, lightning can cause the temperature जिसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाती है present in the air to produce oxides of the nitrogen, which produce oxides of the nitrogen, then dissolve in rainwater with dilute nitric acid, and the nitric acid react with alkalis of the soil to return into the nitrates. So this reaction you have to see the reactions, you have to read out it. केवल इसको पढ़ना है, ठीक है. मेन फॉर्म आपको ये पैराग्राफ लर्न करना है, ओके, जिसमें नाइट्रोजन कैसे चेंज होती है. लिक्विड नाइट्रोजन नीचे आती है एंड देन सॉइल उसको कंज्यूम करती है. सेकेंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम. इट इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द बैक्टीरिया राइजोबियम are found in the soil. They are found in the root of the nodule of leguminous plant like pea and bean. These bacteria can fix nitrogen into nitrates. नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में. अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे, दैट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन या प्रोडक्शन. द प्लांट ऑब्जर्व दीज नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू प्लांट प्रोटीन्स. जैसे मैंने बताया प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. अब नाइट्रोजन पास होता है हर्बीवोर से. एसिमिलेशन मैंने बोला था एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है. लाइक प्लांट्स को ईट करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस, तो उससे ये चेन आगे फर्दर मूव करती है एंड देन कार्निवोर ईट द हर्बीवोर. तो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन. तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ट्रांसफर्ड होती है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन एसिमिलेशन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, the third one is ammonification. When plants die, I told you, पहले तो ये हो गया प्लांट ने कैसे यूज़ किया, प्रोटीन बनाया, ट्रांसफ़र किया, ये थे 2 स्टेप्स. थर्ड होता है जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं या एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनके रिमेन्स जो होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में एक सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे को डिकम्पोज करते हैं सॉइल के अंदर. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन इनटू अमोनिया. अब वो प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन. फाइन. अब डेड एंड डिकेइंग को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इनटू द अमोनिया, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन. नाउ द सेकेंड लास्ट स्टेप, नाइट्रिफिकेशन. Some these compounds are taken place by the plant and rest are converted into nitrates with the help of bacteria present in the soil. अमोनिया से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. एंड द लास्ट स्टेप, द नाइट्रेट्स आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स एंड रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू द फ्री नाइट्रोजन. जिस फॉर्म में आया होता है उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, विच कैन बी डन बाय द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. तो ये सारे काम करते हैं बैक्टीरिया. सो दिस वॉज द इंटायर नाइट्रोजन साइकिल विच यू हैव टू लर्न थॉरली विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो. प्रैक्टिस दिस डायग्राम. इसमें यही एक्सप्लेन्ड है कि कैसे नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलती है और प्लांट से कैसे वापस एयर में जाती है. फाइन. नाउ द लास्ट पार्ट इज फूड फ्रॉम द एनिमल्स. After that we will discuss the exercise in our next lecture, or I will add you as a attachment of the MCQs and everything. तो आपको पता है कॉपी पे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और हॉट्स करने होते हैं. रेस्ट जो एक्सरसाइजेज है ओरल बेस MCQ है 5B 1 वर्ड, ये आपको बुक में ही मार्क करनी है. फाइन. तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग ऑफ कैरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड और अदर पर्पस, कमर्शियल या फिर खाने के लिए, उनको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. क्या क्या हमको मिलता है, पहली बात तो मीट और एग, दूसरा मिल्क यानी मिल्क, ठीक है. बाकी बीज वगैरह से हमको क्या मिलता है, हनी. तो हनी इज़ बीन ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल बाय द बीज कॉल्ड एपीकल्चर. मीट और मिल्क वाले होते हैं जो हमारे सच एज गोट, बफलो, कैमल्स एक्सेट्रा.
मीट हमको मिलता है फिश से, शीप से, पिग से एक्सेट्रा, इसको पोएट्री एनिमल्स बोलते हैं। फिश की रेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। सो यू हैव टू रीड दिस एंटायर पैराग्राफ, mark the important terms and learn it with the examples. So this chapter has been completed. We will discuss about the horticulture और ये सब एक बार read कर लेना, learn these keywords. Now in the next lecture we shall be discussing about the exercise. Exercise में आपको A and B part book में ही करना है, C part, D part and long horse question you have to do it in your notebooks, right, along with the diagram. And start submitting the homework in the assignment sections, right? That's all for today. Thank you. And prepare for the Earth Day. I have put the notification, the app again, that you have to perform in the live class, that you have to make a one wall hanging, जो भी आपके घर पे waste material हो उससे, okay? That's all for today. Thank you.